Yeah, welcome students to this another session of accounts. Today we will be taking up example number 2 of your textbook. Let us go to the question. From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019 and a balance sheet as on that date in the books of Shilpa and Katrina. Their profit sharing ratio is not given, so it means their profit sharing ratio is equal. First is land and building. It is an asset, balance sheet item. Furniture, again an asset, balance sheet item. Sundry debtors, amount you have to receive from the outsiders. It is an asset. It will go in balance sheet. Opening stock, trading account item, debit side. Bad debt, it is a loss, indirect loss. It will appear in P&L account. Printing and stationery, indirect expenditure. It will appear in the P&L account. Wages, direct expenditure. It will wages, it's the direct expenditure, so it will appear in the trading account. Salary, indirect expenditure, it will appear in P&L account. Carriage inward, direct expenditure, it will appear in trading account. Sales return, it is an internal adjustment. It will be subtracted from sales. So I have highlighted it. Drawing, Shilpa and Katrina, they will appear in the debit side of the partner's capital account. Discount, it is on the debit side, so it is a loss. Discount allowed to the customer, so it will appear in the P&L account, debit side. Advance given to Shahrukh. You see, you have given some advance to some person whose name is Shahrukh. So you have to recover this amount. So it is an asset. It will appear in the asset side of the balance sheet. Cash in hand and cash at bank is an asset. It will appear in the asset side of the balance sheet. Interest, it is on the debit side. It will appear on the debit side of P&L account. It is an indirect expenditure. Commission is also an indirect expenditure, debit side of P&L account. Royalties, it is a direct expenditure. What? It is a direct expenditure, so it will appear in trading account. Purchase, direct expenditure, debit side of trading account. Now let us go to the credit side of trial balance. Shilpa, Katrina, capital account, it will be transferred to the capital account of the partners. Bills payable, it is a liability. It will appear in the liability side of the balance sheet. Bank overdraft, it is a short-term liability. It will appear in the balance sheet, liability side. Purchase return. Purchase return is an internal adjustment. It will be subtracted from purchases. So I am highlighting both purchase and purchase return. Creditors, it is a liability. It will appear in the liability of the liability side of the balance sheet. Bank loan, it is a liability. It will appear in the liability side of the balance sheet. Interest received, it is on the credit side. So credit all income, it will appear in the P&L account, credit side. RDD, RDD given in the trial balance is known as old RDD, is known as old RDD. What we will do it with it, I will explain you later. Sales return was there, so sales we will write in the inner column. It is a direct income. It will appear in the trading account. Now let us see the adjustment. Stock in hand was valued at 58,000. It is closing stock. It will appear in the credit side of trading account and in the balance sheet asset side. Outstanding expenditure. Outstanding expenses, royalties and wages. So outstanding, I have explained ample number of time. The expenditure which is still to be paid, वो खर्चा जो देना बाकी है.
तो जो देना बाकी होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ऐड करते हैं, रॉयल्टीज आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी में ऐड हो जाएगा और वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड हो जाएगा। मैं इनको हाईलाइट कर दिया है। क्यों हाईलाइट किया है? लेक्चर नंबर 8। अभी भी अगर क्लियर नहीं हो तो लेक्चर नंबर 8 रेफर करें। सैलरी पेड इन एडवांस, एडवांस में पैसा दे दिया है तो इस बार के खर्चे को क्या करना पड़ेगा, ये प्रीपेड है, इसको क्या करना पड़ेगा, इस खर्चे को कम करना पड़ेगा। तो जो सैलरी एडवांस में दी है वो इस खर्चे में से माइनस करनी पड़ेगी। कितनी है? 2000 रुपया उसमें से माइनस करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, आप करेक्शन कर लें। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट, और फिर वापस आगे लिखा है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। तो अपने आप इंप्लाइड है कि कुछ ना कुछ गलती है। गलती क्या है? ये किताब पहली बार छपी है तो कई गलतियां हैं इसमें, आप इसको करेक्ट कर लें। यहाँ पे लिख दें फर्दर बैड डेट अमाउंट्स टू ₹1000, फर्दर बैड डेट अमाउंट्स टू ₹1000। क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट काट के लिख लें फर्दर बैड डेट अमाउंट टू ₹1000। तो फर्दर बेड डेट को क्या करेंगे, बेड डेट में ऐड कर देंगे। कहां पे ऐड कर देंगे? बेड डेट दे रखा था, बेड डेट में ऐड कर देंगे और डेटर में से सेकंड इफेक्ट क्या है, डेटर में से माइनस कर देंगे। कितनी बार बात हो चुकी है, जो भी आइटम एडजस्टमेंट में ट्रायल बैलेंस के नीचे दिए हुए होते हैं उन दो जगह उनका इफेक्ट जाता है। तो इसको बेड डेट में ऐड कर देंगे और डेटर में से माइनस करेंगे। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन डेटर। रिजर्व फॉर जो ये रिजर्व बनाए बोलते हैं न्यू आरडीडी। क्या बोलते हैं? न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी का क्या होगा, ये बेड डेट, फर्दर बेड डेट और ये न्यू आरडीडी को उसमें ऐड कर देंगे और डेटर्स में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 2 बार निशान लगा लेना, 2 स्टार बना लेना डेटर्स के आगे। तो फर्दर बेड डेट को इसमें से डेटर में से माइनस करेंगे और उसके बाद ओल्ड आरडीडी को सब्ट्रैक्ट करेंगे पी&एल अकाउंट में। कैसे, डिटेल अपन देखते हैं, करता हूं तो मैं आपको बताता हूं। लैंड एंड बिल्डिंग 5% डेप्रिसिएशन, फर्नीचर 10%। डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट लॉस है, पी&एल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को मैं मार्क कर देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर को मैं मार्क कर देता हूं। ठीक है, अपनी सब मार्किंग हो गई। अब 1 बाय 1 अपन सम चालू करते हैं। सबसे पहले क्या दे रखा है आपको, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर। ये क्या है, आपके असेट है। इनमें आपने हाईलाइट कर रखा है, मतलब इनको इनर कॉलम में लिखना है और एडजस्टमेंट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग 37,500, लैंड एंड बिल्डिंग बिल्डिंग 37,800। अब इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, लेस डेप्रिसिएशन 37,800, 37,800। डेप्रिसिएशन कितना है अपन देखते हैं क्वेश्चन में। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे 5% है। कितना है? 5%। तो 5% अपन लिखते हैं 5%। इसका कैलकुलेशन करते हैं, इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। ये आपका कितना हो गया, 1890, 1890, 1890, 1890। तो ये आपका 37,800 माइनस दिस आउटर कॉलम में आ गया। ये लॉस है, लॉस को अपन क्या करेंगे, पी&एल में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1890। नेक्स्ट आपका फर्नीचर, ये भी हाईलाइटेड है, इसका मतलब इसमें भी एडजस्टमेंट है। 17,250 फर्नीचर, 17,250।
17,250। डेप्रीशिएशन, इसमें डेप्रीशिएशन अपन ने देखा था 10% है। कितना है? 10%। उसका 10% कितना होगा? अब करके बताता हूं मैं आपको। 17,250 10% इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये आपका 1725। कितना हुआ? 1725 इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। आउटर कॉलम में जो लॉस है वो दूसरा इफेक्ट इसका टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। टू डेप्रिसिएशन 250 1725। ठीक है। फिर डेटर्स, डेटर्स को अपन इनर कॉलम में लिखते हैं। इसमें दो एडजस्टमेंट हैं, 2 स्टार आप मार्क कर देंगे। डेटर्स 40,000, इट इज अ बैलेंस शीट आइटम। डेटर्स 40,000। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक 65,000। ट्रेडिंग अकाउंट 2 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। उसके बाद बेड डेट, बेड डेट में एडजस्टमेंट है, इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? इनर कॉलम में लिखते हैं और देखते हैं क्या क्या करना है। 2 बेड डेट 400 रुपये। ठीक है, इनर कॉलम में लिखा। अब अपन देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या है। बेड डेट पॉइंट नंबर 4, ये मैंने आपको लिखवाया था। फर्दर बेड डेट अमाउंट टू ₹1,000 रुपीज। तो फर्दर बेड डेट हुए हैं उसको क्या करते हैं? ओल्ड बेड डेट, जो ट्रायल बैलेंस में बेड डेट दिए हुए हैं उसमें ऐड करते हैं और डेटर में से माइनस करते हैं। तो ऐड, इसको बोलते हैं न्यू बेड डेट या फर्दर बेड डेट। ऐड न्यू बेड डेट कितना है? 1,000 रुपया है। एक इफेक्ट तो ये दे दिया, इसकी टोटल हो गई 14, टोटल बेड डेट है। दूसरा क्या करेंगे? लेस न्यू या फर्दर बेड डेट, फर्दर बेड डेट। फर्दर बेड डेट कितना है? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया, तो ये कितना हो गया? 39,000। ठीक है। अच्छा, अब ये बोलता है आरडीडी अपने को बनाना है 3%। तो अपना डेटर का अमाउंट अब कितना हो गया? 39,000। तो 39,000 के ऊपर अपने को आरडीडी कितना बनाना है? 3%। 3% इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये अपना कितना हो जाता है? 1,170 रुपया। तो 1,170 रुपया अपन डेटर में से माइनस कर देंगे। लेस न्यू आरडीडी 1,170 रुपया। तो अपना आउटर कॉलम में क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस। ठीक है। डेटर्स का अमाउंट इतना बाहर लिख दिया। 1,170 रुपए को क्या करेंगे? पीएनएल अकाउंट में ऐड, ऐड न्यू आरडीडी कितना है? 1,170 रुपया। अब ये कितना हो जाएगा? 2,500 इनका। देखो पुराना बेड डेट इतना हुआ था और नया आरडीडी, ये टोटल बेड डेट इतना हुआ था, पुराना नहीं, टोटल बेड डेट इतना हुआ था। नया आरडीडी इतना हो गया, तो टोटल इनका 2,570 रुपया हो गया। अब इसमें से अपन को क्या करना है? लेस ओल्ड आरडीडी जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है, वो अपन जब आएगा क्रेडिट साइड में तब अपन यहाँ पे लिख करके नेट अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है बच्चों। तो बेड डेट के बाद ये अपना एक बड़ा एडजस्टमेंट था जो अपन ने कर लिया है। ये आरडीडी जब आएगा ना, अभी अपन क्रेडिट साइड करेंगे तो लेस ओल्ड आरडीडी अपन वहां पे लिख देंगे।
उसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट खर्चा होता है, P&L अकाउंट में जाएगा 4000 रुपया टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000 रुपया, 4000 रुपया। ये देखिए डेप्रिसिएशन का अमाउंट इनका टोटल लगा के आउटर टू डेप्रिसिएशन, फिर नीचे लिखे लैंड एंड बिल्डिंग, या दोनों को ही आप इधर भी लिख सकते हैं। और इनको आपने आउटर कॉलम में लिख दिया तो इनको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटर कॉलम में आपने लिख दिया। उसके बाद वेजेस, वेजेस हाईलाइट है, इसका मतलब इसमें एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना है। ये डायरेक्ट खर्चा है, तो वेजेस डायरेक्ट खर्चा है टू वेजेस 3000 रुपया, आई सपोज 3000 रुपया। अब इसमें हाईलाइट कर रखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपया, मतलब देना बाकी है, तो इसमें ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 800 रुपया, 3800। ठीक है, 3800। और ये आउटस्टैंडिंग जो है इनको अपन लाइबिलिटी में लिख देते हैं। कहाँ लिख देते हैं? लाइबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800 रुपया। उसके बाद नेक्स्ट अपना सैलरी, ये भी हाईलाइटेड है, इसका भी एडजस्टमेंट अपन को इफेक्ट देखना है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, P&L अकाउंट में आएगा 5000 रुपया तो 5000 रुपया। इसका क्या एडजस्टमेंट है अपन देखते हैं। सैलरीज पेड इन एडवांस, मतलब नेक्स्ट ईयर का अपन ने इस साल में पे कर दिया है, तो 2000 रुपए जो पे कर दिया है ना, इस साल का खर्चा नहीं है, इसको कम करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड। क्या बोलता है, जो एडवांस में दिया उसको प्रीपेड। कितना है? 2000 रुपया, तो इस साल का खर्चा 3000 रुपया है। और जो जो एडवांस में दिया है ये अपना असेट है। क्या है? असेट है। क्या? असेट। प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2000 रुपया, ठीक है, ये अपन ने कर लिया, दोनों इफेक्ट दे दिए सैलरी के। अब है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कैरेज इनवर्ड टू कैरेज इनवर्ड 4000 रुपये। कितना है? 4000। उसके बाद सेल रिटर्न। सेल रिटर्न पे हाईलाइट कर रखा है, ये सेल्स में से माइनस होगा, इसको इनर कॉलम में लिखते हैं बाय सेल्स रिटर्न लेस सेल्स रिटर्न। द अमाउंट इज 2000 रुपया, 2000 रुपया। उसके बाद ड्रॉइंग पार्टनर्स के डेबिट साइड में जाएगी, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगी शिल्पा और कैटरीना। पार्टनर्स का अकाउंट ये रहा, यहाँ पे लिखेंगे टू ड्रॉइंग्स 2000 और 3000। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट 2030, इट इज अ लॉस 2030 टू डिस्काउंट 2030। एडवांस गिवन टू शाहरुख, इट इज एन असेट। एडवांस गिवन टू शाहरुख लिखेंगे एडवांस टू शाहरुख। कितना है? 10,000 रुपया, 10,000 रुपया। फिर अगला है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये आपका असेट है, कैश इन
एंड 20,000 रुपया है, और कैश एट बैंक 8,000 रुपया था। कंफर्म कर लेते हैं अपन, 20,000 और 8,000। फिर इंटरेस्ट डेबिट साइड में है, इंटरेस्ट डेबिट साइड में है, तो इंटरेस्ट 1,000 रुपया खर्चा है, P&L के डेबिट साइड में लिख देंगे इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट 1,000 रुपया इंटरेस्ट। उसके बाद कमीशन डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर है 2,000 रुपया टू कमीशन, टू कमीशन 2,000 रुपया। उसके बाद रॉयल्टी, रॉयल्टी अपन ने हाईलाइट कर रखा है, रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा 2,000 रुपया। की 2,000 रुपया इनर कॉलम में, देखते हैं क्या एडजस्टमेंट है। रॉयल्टी 2,000 रुपया और एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है 1,500, 1,500 देना बाकी है। तो आउटर कॉलम में 3,500, यहाँ पे एड आउटस्टैंडिंग। ठीक है, रॉयल्टीज लिखा है तो आप रॉयल्टीज वर्ड का यूज कर लीजिए, रॉयल्टीज एड आउटस्टैंडिंग। और जो इसका सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में जाएगा, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज कितना है 1,500 रुपया, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी 1,500 रुपया। परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा टू परचेजेस, टू परचेजेस। 50,000 रुपया था, 50,000 रुपया लिख दिया। अब रिटर्न आएगा क्रेडिट साइड में तो अपन लेस रिटर्न कर देंगे। अब अपन के डेबिट साइड के सारी चीजें हो गई, अब अपन क्रेडिट साइड में चलते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 45,000, 45,000 शिल्पा एंड कैटरीना कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 45,000 और 45,000। बिल्स पेबल ये क्या है आपकी लाइबिलिटी है 17,500, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है 17,500। बिल्स बिल्स 17,500। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, 10,000 बैंक ओवरड्राफ्ट। परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस होगा 1480 लेस परचेजेस रिटर्न 1480 और दिस माइनस दिस। ठीक है, परचेज क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। कितना अमाउंट है देखते हैं अपन, सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000 रुपए, 22,000। उसके बाद बैंक लोन भी लाइबिलिटी है, बैंक लोन 15,000 रुपया, बैंक लोन 15,000 रुपया। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये आपकी इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम P&L अकाउंट में जाएगी। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय रिसीव्ड
1500 रुपया आपका इंटरेस्ट रिसीव। RDD अपन को क्या करना है, जो सब अपन ने कैलकुलेशन करा था ना उसमें से ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ है ओल्ड RDD, इसको माइनस करना है। इसको क्या करना है, माइनस करना है। लेस ओल्ड RDD 1000 रुपया। अच्छा बच्चों, इसमें एक सवाल क्रिएट करता हूं। अगर ये 3000 होता, ओल्ड RDD 3000 होता, तो क्या करते आप, 3000 बड़ा है, खर्चा कम है, तो ये आप क्रेडिट साइड में ले जाते। 3000 माइनस 2570 आप क्रेडिट साइड में लिखते। ये डिस्कशन मैं कर चुका हूं। देखिए खर्चा कम है, यहाँ पे तो ज्यादा है, खर्चा 2570 है और नया RDD अपन ने 1000 रुपये, पुराना RDD 1000 रुपया ही है, तो ये एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर पुराना RDD आपने पैसा बचा के 3000 रख रखा होता और पुराना खर्चा आपका 2570 रुपये ही होता, तो जो 3000 आपने बचाया वो ज्यादा है ना, तो 3000 माइनस दिस वो आप इनकम साइड में लिख देते हैं। मैंने सारे एक्सपेक्ट डिस्कस, सारे पहलू आपके सामने डिस्कस कर लिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सेल्स 1,20,000, सेल्स बाय सेल्स 1,20,000, 1,20,000 में से 2,000 रुपया माइनस कर देंगे, 1,18,000। आपके सारी चीजें हो गई। अब अपन एडजस्टमेंट, स्टॉक इन हैंड वाज वैल्यूड एट 58,000, तो स्टॉक को अपन ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में लिखते हैं। स्टॉक इन हैंड कितना है, 58,000, आई सपोज 58,000। हाँ, ये अपन एडजस्टमेंट कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग का ये भी अपन कर चुके हैं, बेड डेट का भी कर लिया और ये भी कर लिया, डेप्रिसिएशन का भी। अब अपन क्या करते हैं, सम को बैलेंस करते के देखते हैं। टोटल लगाते हैं इज इक्वल टू सम, ये आपकी टोटल 1,76,000 कितनी आई, 1,76,000 आई। इसमें से अपन ये वाली टोटल आपकी 1,24,820, 1,24,820। तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करते हैं, तो ये आपका 51,180, ये आपका क्या आया, ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट साइड की टोटल करी, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड को माइनस करा। अगर डेबिट साइड बड़ा हो तो डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करते, ग्रॉस लॉस हो जाता। यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड की छोटी टोटल को माइनस करा, और क्रेडिट साइड बड़ा है तो जो अमाउंट आता है वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रॉस प्रॉफिट 51,180। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। एक आपको अभी क्विज भेजा है ना हमने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजा है ना, उसमें ये सम है। अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो बोलते हैं डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती तो बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। द डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस लॉस। आपको आज ही मैंने कल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजा था, तो ये डेबिट बैलेंस है। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो डेबिट बैलेंस है, और जो निकल के आएगा वो आएगा ग्रॉस, या तो ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट बैलेंस होगा और ग्रॉस प्रॉफिट। अगर डेबिट साइड बड़ी है तो उसको बोलेंगे डेबिट बैलेंस, और वो आएगा ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस को इधर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। अब अपन टोटल लिख देते हैं, 176,000, यहाँ पे टोटल टोटल और यहाँ पे टोटल। ठीक है, ये आपको इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इस 51,180 को, ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, P&L अकाउंट में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
51,180। ठीक है, अब इनको भी बैलेंस करते हैं, इसकी टोटल लगाते हैं अपन, इज इक्वल टू सम। कितना है 51,180 और तो 52,680। 52,680 इधर लिखा। इसमें से अपन को क्या करना पड़ेगा, ये टोटल देखते हैं कितनी आती है, किसमें से किसको माइनस करने की जरूरत पड़ती है। ये टोटल आई आपकी 17,215। 17,215 तो इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। तो ये आपका 35,465 क्या निकल के आया, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड की टोटल कम है। तो जो आपका निकल के आया 35,465 आपका 35,465, तो सॉरी गलत लिखा, 35,465। अब इनको बांटना है पार्टनर्स में, 35,465 को पार्टनर्स में बांटना है। 35,465 50% इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। कितना हुआ ये 17,732। तो दूसरा वाला भी इतना ही आएगा, दोनों 732.5। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा है कि किस रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट या लॉसेस, और नीचे भी कुछ भी नहीं दे रखा है, कोई रेशियो नहीं दे रखा है। तो ये बराबर बराबर शेयर करेंगे तो 50। अब इनको राउंड ऑफ कर देते हैं, 17,733 भी कर सकते हैं, 32 भी कर सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर देते हैं। आप इसको भी 33 कर सकते थे, इसको भी 32 कर सकते हैं। मैंने ऐसे करा है, नहीं तो स्टूडेंट कहते हैं सर हमेशा ही ऊपर वाले को क्यों आप ज्यादा करते हो, इस बार ऊपर वाले को कम कर दिया है। 17,732 तो पार्टनर्स को टू प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या क्या नाम है, शिल्पा, शिल्पा और कैटरीना। शिल्पा का कितना है, अपन ने देखा तो 17,732 और 17,733। अब इसको इनके कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 17,732, 17,732, 17,733। अब इनका टोटल लगा लेते हैं, इज इक्वल टू ये टोटल आ गया, ये टोटल इधर भी का भी लगा लेते हैं, ये भी टोटल आ गया। अब इसमें से ये डेबिट साइड का माइनस कर देते हैं और बैलेंस निकाल देते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना होगा, 2000 माइनस करना है तो 60,732, और इधर कितना आएगा, 62 में से 3 माइनस करेंगे तो 59,733। इधर भी 62,732 और इधर 62,733। अब ये जो बैलेंस है ये कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे, बैलेंस शीट में। कहाँ पे हो जाएंगे, बैलेंस शीट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाम लिख देंगे
शिल्पा और कैटरीना। शिल्पा का कितना है 60 732 और कैटरीना का 59 733। अब इन दोनों की टोटल लगा देते हैं आउटर कॉलम में। इनको आउटर कॉलम में भी लिख सकते हैं डायरेक्ट और ऐसे भी लिख सकते हैं 1,20,000। सारी चीजें अपन ने पोस्टिंग कर दी। अब इधर का टोटल लगा लेते हैं। ये आपका टोटल आता है 187,265। 187,265 आप यहाँ पे लिख देंगे TOTAL और यहाँ पे भी TOTAL और इधर का भी टोटल लगाते हैं। देखते हैं SUM सम सब आउटर कॉलम में लिख लिया ना। हाँ लिख लिया। एक बार चेक कर लिया करो इनर कॉलम के कैलकुलेशन कई बार क्या होता है रह जाता है। एक बार देख लिया करो। अच्छा स्टॉक अपन ने नहीं लिखा। स्टॉक का हाथों हाथ इफेक्ट देना चाहिए 58,000 अपना मिल गया एकदम स्टॉक STOCK स्टॉक इन हैंड या क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हैं। स्टॉक इन हैंड पर लिखना है। ठीक है बच्चों स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक का एक बार इधर लिख दो ट्रेडिंग अकाउंट में और हाथों हाथ ही इधर भी इफेक्ट दे दीजिए प्लीज। तो इस तरह से आपने देखा बैलेंस शीट मिल गई। कभी कोई आइटम एक आधा रह जाता है तो कोशिश करिए ढूंढने की क्या आपसे हुआ है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस सम एंड try and practice it. Any difficulty? My WhatsApp number, my email ID I have given. And in the next class, I will be taking up example number 5. Example number 5. I will be taking up example number 5. जो आपको मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेजे हैं आपके ग्रुप्स में, आपके क्लास टीचर्स ने, सबके क्लास टीचर्स ने भेजे हैं। काइंडली कंप्लीट एंड सेंड। आज सुबह तक मैंने देखा था केवल 43 बच्चों ने ही अटेंड किया था। प्लीज बच्चों केवल मेरे सब्जेक्ट का ही नहीं सारे सब्जेक्ट के टेस्ट आप करके सबमिट करिए। जितना आपको आता है उतना करिए। आपको आइडिया लगेगा कि जो आपने सुना है, अगर आपने सुना है तो भी कम से कम आपके 60-70% नंबर आने चाहिए। कोई नहीं आता है तो ये तो अभी शुरुआत है। ये तो अभी जून का महीना है। अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। सो घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और मम्मी की हेल्प करते रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ ये वाली बात। मेरी बात सुन के कई पेरेंट्स के फोन आए मेरे पास कि क्या करें साहब हमारा बच्चा काम ही नहीं करता, समझाइए। अब बच्चे हैं धीरे धीरे समझेंगे और करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज फॉलो all what I have requested you.